What are your findings about social psychology? When you're going through depression or anxiety, so you go for therapy, that's all psychology. It's not. We were always a collective society. Pakistan, India, Bangladesh, we're collective societies. Society ka impact on the person, but now also the person's impact on the society. So social psychology looks at both things, right? सोशल साइकोलॉजी को कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें. व्हाट आर द इश्यूज बेसिकली अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ की तरफ आके देखें तो वो क्या है और ये किस तरह हेल्प कर रही है. जहाँ बहुत सारे लोग होंगे, एक सोसाइटी प्रेजेंट होगी, ग्रुप प्रेजेंट होंगे, दैट्स वेयर सोशल साइकोलॉजी डज स्टेप इन. सो देयर इज अ इंटरेस्टिंग बुक कॉल्ड व्हाट्स सोशल अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर. सोसाइटी की क्या नीड्स हैं, हाउ डू आई मार्केट माई प्रोडक्ट फॉर दैट देन. व्हाट एग्जैक्टली यू वुड सी दैट कंज्यूमर साइकोलॉजी किस एरिया में बहुत लैक कर रही है, तो किस तरह से इससे बेहतर कर सकते हैं. I'm just going to say that our demands are such that the idea is I need to cater to the demand. What we don't focus on is our own well-being. There is a whole theory of, selling happiness. And that is the idea that's coming up, that selling happiness without making it toxic happiness. मेंटल हेल्थ को उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही. What are the reasons you think Acceptance बिल्कुल. कि लोनलीनेस बहुत बढ़ती जा रही है. That social devices, Yeah, that makes a definitely. disconnect. What are or other reasons, The youth is very inspired by the Western culture, and Western culture is more individualistic. What social media has also done is that even when you're sitting next to a person, you're on your phone. Why people feel empty and they still have that anxiety despite having everything. You're constantly thinking, okay, what next? You're never thinking, yeah, okay, I achieved this. I can take a step back. I can breathe. I can be grateful. बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे होते, अपनी थॉट्स को अपग्रेड नहीं कर रहे होते, अपने पैटर्न्स को नहीं चेंज कर रहे होते. We as humans love to be in our comfort zone. How to convert a bad day into a good day? Darkness नहीं होगी तो लाइट कहाँ से आती है? Beautiful. कि लाइट की वैल्यू डार्कनेस के बगैर नहीं समझ आती हमें. Thank you so much, Falak, for taking out time for this podcast, which we called Impact with Some Other Boss. And Thank you for I would like to inviting me. start with your journey in this development field in psychology. जो आप काम कर रही हैं, आपकी जो psychology की journey थी वो कहाँ से शुरू हुई? Oh, interesting. So I was always interested in, human behavior. Why do we do? Why do we behave in certain ways? Then I met with a personal tragedy. I shared it. So my sister passed away, and then Okay. I met with. I didn't know how to deal with grief or वो सब. तो थोड़ा सा मुझे उसने ज़्यादा push किया because मैं A level में psychology पढ़ रही थी, and then I realized, yeah, I want to continue this now, because if I can help someone who went through the same thing that I did, how to handle grief, how to go about, dealing with things. तो उसमें फिर then I got into this field. I did clinical. In clinical, although I eventually realized that counseling is something I can do, but full on or deep clinical with dealing with psychosis, neurosis, that I realized was still not something I wanted to pursue long term because it takes a toll on you. So then I went towards organizational for my MPhil. That was interesting to a certain level. Nice. And then so I was always then became more interested in gender issues and what are the problems that the society faces, so social issues and how can we work on those. And then I moved towards social psychology for my PhD, which currently I'm doing. What are your findings about social psychology? इस वक्त जो हमारी सोसाइटी में इश्यूज चल रहे हैं, करंटली का पाकिस्तान की हम बात करें तो सोशल साइकोलॉजी का आप क्या रोल देख रही हैं, एंड व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट इंडिविजुअल्स शुड लर्न अबाउट दिस, बिकॉज आई थिंक साइकोलॉजी तो है इम्पोर्टेंट, बट व्हाट स्पेशल इज अबाउट सोशल साइकोलॉजी? So what's interesting is that even when I was growing up, when I started, when I did not know what psychology is, I always thought it's therapy. Or clinical side hoti hai, and this is what they tell us, and you go for when you're going through depression or anxiety, so you go for therapy. That's all psychology is. It's not. When I explored more, I realized, okay, for instance, when I'm talking about working on social issues, something as simple as abhi मैं controversial चीज़ों पे ना भी जाऊँ तो loneliness, it's increasing in the society, right? We see children going abroad to study and parents staying behind. If one of the parent passes away, then either the mother or the father is living alone. Now we were always a collective society. Pakistan, India, Bangladesh, we're collective societies. So
there was a trend of joint families. There was a trend of, parents living with children and grandchildren. अब वो trend कम होता जा रहा है. So loneliness is becoming more and more widespread. And when that whole society is changing, what is happening? That parent, of course, is getting lonely. How do we tackle loneliness is another question. How is it impacting the mental health of that parent who's living alone? Again, it comes down to depression, anxieties. How can we help them? That becomes, society ka impact on the person, but now also the person's impact on the society. So social psychology looks at both things, right? So of course the person's impact was that, a young person like you or a lot of youth that we see when they go abroad, their idea is, oh, I want to make something for my life. And I will support my parents. It's not like they're abandoning. लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो parent रह जाता है वो empty nest, that loneliness, as it keeps growing, how is it impacting? So it's like a whole, circle that we are looking at in social So psychology. ये चीज़ बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में. I wanted to keep my question Yeah. with your thought कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं जो बाहर पढ़ने जा रहे होते हैं स्टूडेंट्स, वो डेफिनेटली उनके पेरेंट्स वो लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं. एंड सम पीपल डोंट हैव एनी ऑप्शन, Yeah. उनके लिए बहुत जल्दी आना आसान नहीं है. Not possible. और वो उस करियर को, उस चार्म को Yeah, देखने के yeah. बाद वहाँ पर उस चीज़ों को छोड़ना वो भी आसान नहीं है. प्लस यहाँ पेरेंटिंग वाला जो पार्ट है, जो मेंशन कि वो अबैंडनेस, वो लोनलीनेस, वो एम्प्टीनेस उनकी ज़िंदगी को कम कर रही होती है. Yeah. So what should be done, what are the, what do you figure it out कि क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में? So it's not one solution fits all. वो कभी Exactly. नहीं होगा. मतलब मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हाँ. क्या कहते हैं? So एक तो हमारे यहाँ टैबू अनफॉर्चुनेटली है ओल्ड एज होम्स का. मुझे वो समझ नहीं आता टैबू क्यों है. सही है. अगर आपके पास कोई अच्छा, there are people who are willing to invest in good old age home, and they are coming up, by the way, in Karachi. If you look around, they are coming up. But what that does is, same age group of people, like I went to one when I was in, I think I visited one in Seattle. It was very nice because, again, old age people, same age, around 60s, 70s, 80s, they got together, they played games, they had their own movie nights, they were friends. हमने क्या किया हुआ है, because हमारा एक ओल्ड थॉट है या एक ट्रेडिशन रहा है कि ओल्ड एज पीपल, उनको क्या इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर करना, why should they deserve good things? And then if you look at those movies, how they used to present old age homes, के बुरा ट्रीट हो रहा है, वो सफाइयाँ कर रहे हैं. That's not it. We're talking about good old age homes. Then yes, they can live together, they can build those friendships, and those people, they travel around together. I mean, so I know this distant relative of mine who's passed away, but Navy ke the wo, and they had whole Navy association or something. I don't know exactly what it's called, but they would travel to Hunza every year. kabhi Hunza ja rahe hain, kabhi kahin aur ja rahe hain, kabhi international, they're traveling everywhere. And he was in his 60s, 70s, 80s after retirement. And the group of the social life he had, I felt like even I didn't have. Nice. Right? So it was just, you need to give them those avenues. Ab old age home mein, there are different types of old age homes. They don't always have to be that they live there. They can be daytime. जैसे हम बच्चों का डे केयर सेंटर रखते हैं, वैसे you can have daytime old age homes, right? Where similar age group people come together, they play games, they talk about things, they interact, they again have their planning to go, for trips. Then there was a very interesting, और ये तो मैंने TV पे ad देखी थी, which I really clicked, and it should be done is, if they're older generation who does not have children, or they're whatever, the children are abroad, whatever reasons they're alone, why can't we have old age home with a orphanage? Yeah. Right then and there, those people, the kid has someone to take care of them, and those older people also have children to take care of them. That interaction, that love that forms, is something very unique. But I think हमारे वो कल्चर शायद अभी इतना डेवलप हुआ नहीं है. हम बहुत रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि वो माँ बाप की खिदमत एंड ऑल दैट स्टफ. लेकिन इसमें ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि आप खिदमत ना करें. खिदमत हम कैसे कर सकते हैं? अगर आप ही ओल्ड एज होम में इन्वेस्ट करें. One potential, right? दूसरा जो मैं कह रही हूँ, there was one interesting, I think मैंने कहाँ पढ़ा था, I don't know, again I read up so मैं भूल जाती हूँ, but one of the old age homes का concept I saw was weekdays में, because बच्चे are so involved in that, या सिटी में कराची में काम कर रहे हैं, और ओल्ड एज होम आपका इस्लामाबाद में है, मे बी दे उधर तो खैर आई थिंक इट वाज मोर काउंटी एंड कंट्री में, वेयर यू हैड टू ट्रैवल बिटवीन सिटीज़.
they live weekdays में the parents stay with other elder generation, weekends को आप बच्चों के पास आ जाए, Nice. spend time, बल्कि you have जो हम बच्चों के लिए कहते हैं कि quality time, spend quality time with your kids rather than quantity time, we can have the same policy for parents also. जैसे हम सोशल साइकोलॉजी को कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें कि कॉर्पोरेट लाइफ में किस तरह हेल्प कर रही है इंडिविजुअल्स को, और व्हाट आर द इश्यूज बेसिकली, अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ की तरफ आगे देखें तो वो क्या है और ये किस तरह हेल्प कर रही है. So social psychology looks at everything, right? जहाँ बहुत सारे लोग होंगे, एक सोसाइटी प्रेजेंट होगी, ग्रुप प्रेजेंट होंगे, that's where social psychology does step in. So in a corporate world, it does look at, the whole DEI perspective. It's very involved in that. Why prejudice does happen, why it doesn't happen, what kind of stigmas are there, structural stigma kya hota hai, that comes from, organizational level stigma. Then we also have the idea, there was a very interesting, again I'm going to keep quoting books, but a book that I came across because I teach consumer psychology at my university. So there's a interesting book called What's Social About Consumer Behavior. And that is entirely written by a social psychologist. And all she's looking at is society ki kya needs hain, that how do I look at, these, how do I market my product for that then? Very nice, very nice. Moving forward, अगर अभी हमने कंज्यूमर साइकोलॉजी की बात की, the kind of consumption mindless consumption हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, a lot of people are consuming products and things, but what exactly you would see that consumer psychology किस एरिया में बहुत lack कर रही है, लोग किस तरह से इससे बेहतर कर सकते हैं? Okay, consumer psychology मैं ये नहीं कहूँगी कि it's lacking in anything. I'm just going to say that our demands are such that the idea is I need to cater to the demand. So, that mindless reels we're scrolling and we pay for, certain apps, we are willing to pay for them. That's again, entertainment. What we don't focus on is our own well-being. Right? अगर आप constantly रात को reels देख रहे हैं, which unfortunately the youth is doing, हम लोग भी कर रहे होते हैं, we are also, so you're not sleeping well, you're not looking after your health. So now what's interesting is there's a whole movement which is that how do I sell well-being to the masses? लेकिन अब उसका एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी हो गया कि वो भी कमर्शलाइज हो गया है. सो वेलबीइंग जो आपकी वेलबीइंग के लिए थी उसको भी हमने कमर्शलाइज कर दिया, तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है. बट देयर इज अ होल थ्योरी ऑफ सेलिंग हैप्पीनेस. Nice. And that is the idea that's coming up, that selling happiness without making it toxic happiness. So in corporate world, a lot of people talk about mental health, and मैं समझता हूँ बहुत important area है जिसके ऊपर बहुत से लोग बात भी कर रहे हैं. But why do you think is that कि इस mental health को उस तरह से importance नहीं दी जा रही? What are the reasons you think? मतलब for example जिसने हम अपनी personal development को importance दे रहे हैं, branding, hustle culture को, financial values को, but जो mental health है अभी तक इसको वो मुकाम या वो दर्जा, I think वो level नहीं receive हुआ जिसको receive होने की ज़रूरत है. Why is that so? Okay, can I ask you a question first? Yeah, sure. आपको अभी you were coughing a little before we started, नज़ला सा हो रहा है, let's say. बिल्कुल ऐसे ही. What did you do for yourself for that? मैंने गरम black tea ले ली, green tea ले लिया, cough syrup ले लिया, that's all. Maybe I go to a doctor as well अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो. अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो, right? But you're here at work, you're here doing whatever you need to do. Exactly. पूरा काम चल रहा है. ऐसे ही. Mental health में क्या हो रहा है, हम लोग देखते हैं, I'm feeling a little stressed. Why am I stressed? I can't identify. सही है, घर जाऊंगा, रिलैक्स करूंगा, सो जाऊंगा, कल I'll be fine. Same thought process, गर्म पानी पी लिया, गला ठीक हो जाएगा, I'll be fine. Unfortunately, physical ailments में हम लोग ये कहते हैं, हमें पता चल जाता है कि we are worsening, right? नज़ला बुखार बढ़ गया है, temperature आप ले सकते हैं thermometer से, and then you know कि it's time I need to go to the doctor. Mental health में क्या होता है, हमें वो इंक्रीज का पता ही नहीं चल रहा होता, राइट? कितना वो वर्सन हो गया हमें अंदाजा नहीं हो रहा, बिकॉज इट्स नॉट इन, आई कांट सी इट, राइट? आई कांट फील इट, आई कांट. सो वहाँ हमारा एक इग्नोरेंस लेवल आता है. एक ये है कि एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं है, राइट? आई मीन इफ आई से दैट आई एम स्ट्रेस्ड और आई एम फीलिंग बर्न आउट, एंड इफ आई गो एंड टेल माई बॉस स्पेशली कि मुझे 1 घंटा ऑफ चाहिए बिकॉज आई वांट टू गो फॉर थेरेपी, आई विल बी जज्ड. स्टिग्मा बहुत ह्यूज अटैच्ड है और अब तक अटैच्ड है. आई मीन सो
again, because I'm working at a university, I also see this that students come up to me saying, if I tell my parents कि मैं therapy के लिए, you know, I'm coming up to you that I want therapy, they judge me. They say कि क्या ज़रूरत है, हमने भी तो अपना ज़माना गुजारा है, we never had any such issues, why do you need to go for therapy? So, you know, that whole idea that the stigma is attached, I'll be judged by my boss, he might think that I can't perform now, it'll hinder, you know, it'll affect my performance, it'll affect the deadlines, whether I can meet it. So that's their stigma, that's the fear attached also with it, because I need to project myself as someone who can do this job. You mentioned about the loneliness part, Yeah. and one of the reasons that people suffer from mental health issues, one of this loneliness एक बहुत बड़ा factor है जिसकी वजह से लोग mental health वाले issues से suffer कर रहे हैं. मैं जॉन लीवी की research पढ़ रहा था कि पुराने ज़माने में एक दोस्त के पास 1986 में एक research sample के according एक इंसान के पास 4 या 5 अच्छे दोस्त हुआ करते थे. 2001 में वो 1 से 2 हो गए. 2007 में जब आईफोन लॉन्च हुआ तो उन दोस्तों की तादाद बिल्कुल ज़ीरो हो गई है. अब वो अपनी सोशल मीडिया डिवाइसेस के साथ ही कनेक्ट है. ये लोनलीनेस बहुत बढ़ती जा रही है. एक रीज़न तो मुझे समझ आ रहा है दैट सोशल डिवाइसेस, यू नो, दैट मेक्स अ डिस्कनेक्ट. व्हाट आर और अदर रीजंस, यू नो, आपको क्या लगता है और रीजंस क्या है और इसको किस तरह से क्योर किया जा सकता है? So, I mean, if I look at Pakistan specifically, I do see that the youth is very inspired by the Western culture. And Western culture is more individualistic. Right? We know that in the West, there's a tendency that you move abroad, or you move out of your parents' house at the age of 18. You know, do your. So we are getting inspired by that, right? So there's increased empty nest for parents, right? Second is that I also feel that not only are we getting more moving away from our parents, we're also moving away from family values. There's a gap in that values, because we look at our parents and we say, yaar ye takyanusi baatein kar rahe hain. When they tell us that, you know, this is how you should be, or respect your elders in this way, salam aapko karna chahiye. So there's a question that once I was asked by some child I know, मैं क्यों पहले सलाम करूं, इसमें क्या हर्ज है? लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा, if they why don't he अच्छा sorry, that child asked me because he said कि last time मैंने सलाम किया था उन्होंने जवाब तो दिया नहीं, तो मैं हर बार क्यों करूं? मे बी उन्होंने सुना नहीं. सही बात है, एग्जैक्टली. मतलब हम लोग बहुत कन्फ्रंटेशनल, एजिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, एंगर, ये सारी चीज़ें हमारे में बहुत होती जा रही हैं. सो ऑल दीज नेगेटिव इमोशंस अनफॉर्चुनेटली जब फेस्टर हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं निकलते हैं, वो हमें डिस्टेंस कर रहे हैं लोगों से, right? So that's another factor that I feel is happening. Third, of course, you said social media. What social media has also done is that even when you're sitting next to a person, you're on your phone, right? आप face to face कितने लोगों से connect कर रहे हैं? And because social media has made us very, you know, we are scrolling through reels, पसंद नहीं आया, चलो 2 सेकंड सुना, पसंद नहीं आया, आपने चेंज कर दिया, फिर 2 सेकंड. you 5 मिनट का मैक्सिमम सुन पाते हैं, अगर कोई रील देख भी पाते हैं. 5 मिनट इज ऑल्सो अ लॉट, राइट? बैठ के 1 घंटे तक आप किसी की सुन सकते हैं? बहुत मुश्किल काम है, एग्जैक्टली. So, you know, all these things are keep coming in and वो बढ़ती ही जा रही हैं. Good friendships बहुत कम हो गए हैं. अच्छा, अब ये भी है, and this I can say also from personal experience, I have few close friends. My closest friend just moved abroad. अब मैं जिससे रेगुलरली मिलती थी वो है ही नहीं. So मुझे भी एक loneliness, उनको भी loneliness का फैक्टर फील होता है because she's moved abroad and I'm also, you know, that one connect that you had, which is so people are so also involved in making their own lives. और आजकल अपनी लाइफ बनाना, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे आप साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे आप अपना स्टार्टअप कर रहे हो, यू आर सो इन्वॉल्व दैट दिस इज माय टारगेट, आई नीड टू अचीव इट, इफ आई डोंट अचीव इट तो यू नो हमने अपने आई शुड बिहेव इन दिस वे, आई शुड बी एबल टू डू दिस, आई शुड अर्न दिस मच, आई शुड कर दिया हमने अपने ऊपर इतना कि वी आर लूजिंग टच विद पीपल. नहीं, आज मैं आपसे नहीं मिलूंगी, आई हैव दिस मीटिंग, राइट? हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? हम अपने priorities बदल गई हैं एक तरह से. So a lot of individuals I met, they have a great career, they have a great family, they have everything in their life, but still they feel anxious, you know, still they have that anxiety thing. मतलब बिला वजह की लोगों को आदत होती है कि परेशान होना है, मतलब तो ये what are these factors, you know, क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है कि why people feel empty and like they still have that anxiety despite having everything?
अच्छा, I would say इसके भी multiple reasons हो सकते हैं. The one thing about psychology is there's no one answer for anything, right? हर Yeah, yeah. जैसे कहते हैं ना, हर ताला अलग, हर ताले की चाबी अलग. तो वो वाकई में it's very true because individual differences are there, and yet, of course, not downing psychology, I love it. We try to understand societies and group behavior, right? कि majority इस तरह होंगे. So why is that happening? There could be multiple reasons. First of all, you said they have a great family, great career, great. Let's look at these two greats. Great career है, कैसे पहुंचे वो उधर तक? If it's been a struggle all their life, right? They started from zero and became a CEO of someone. Self-made इंसान है. ऐसे ही. वो person has been on the edge and constantly working and constantly been in that anxious phase for so many years that they don't know how to turn it off often. Yeah. Right? पहला तो एक वो हो जाता है कि हमें पता ही नहीं है how to live a different life. I'm constantly on the get go, right? अच्छा, मैंने ये अचीव कर लिया, what's next? अच्छा, मैंने ये अचीव कर लिया, what's next? Constant चला जा रहा है. आपने अपने ऊपर इतना प्रेशर डाला हुआ है, और वो थोड़ा सा खुद भी तारी किया हुआ होता है, of course, but it's there on you, right? And you're constantly thinking, okay, what next? You're never thinking, yeah, okay, I achieved this. I can take a step back. I can breathe. I can be grateful. हम लोग कितना, how often are we grateful for things? Great family. Are you sure it's great? You might have a very good companion who listens to you. Spouse might be very, supportive. True. Might not be. Face value पे external लोगों को supportive और अच्छा लग रहा है. Might not be. What's going on behind? On the other hand, there might be other child-related issues. आजकल families that have had no history of, mental health, children do have anorexia, children do have, depression, anxieties. They constantly. On top of it, आपने जो भी कर लिया, child rearing is a huge responsibility. Very true. How invested and how much time can I give my child? If I'm a CEO and my job requires me to be at my office for 8-9 hours, my child is complaining, Papa, Mama, you don't give me time. Very true. Very true. इतनी सारी छोटी छोटी reasons couple up भी होती हैं, right? So there's so many things that we fail to look at sometimes, right? That, okay, there is that, okay, what's putting that person on the edge? Is it family related? Is it career related? Is it self related? Achha, I've given all my time to my family and my career. I didn't do anything for myself. मैं मोटा होता गया, होती गई. Maybe my physical health is, I feel something inside me that's telling me my physical health is not well. I can't pinpoint what it is. Very true. I was reading Jim Quick, one of the greatest author when it comes to brain psychology, Limitless. बड़ी कमाल बात उन्होंने अपनी किताब में की कि mind likes novelty. हमारे जहन को नॉवेल्टी की ज़रूरत है, नए ख्यालात की ज़रूरत है. कंटिन्यूसली लर्न करना बहुत ज़रूरी है. अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है. इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 12 years इन द कॉर्पोरेट करियर. मैं देख रहा होता हूँ ट्रेनिंग्स में, कोचिंग्स में. बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे होते, अपनी थॉट्स को अपग्रेड नहीं कर रहे होते, अपने पैटर्न्स को नहीं चेंज कर रहे होते हैं. जबकि उन्हें बात पता है कि अगर वो अपने आप को अपग्रेड करेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करेंगे, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करेंगे, सो डेफिनेटली उनकी करियर ट्रेजेक्ट्री में ग्रोथ आएगी. क्यों ऐसा होता है कि लोग उन पैटर्न्स को नहीं चेंज कर पा रहे और क्यों अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे? जबकि एक साइकोलॉजिकल नीड है. जिस लाइक हम पानी पीते हैं, हमें प्यास लगती है, इसी तरह ह्यूमन माइंड को विजडम, इंटेलेक्ट, थॉट्स की ज़रूरत है. But क्यों? Okay, so there's again 2 aspects to this. One, the mind does love novelty, sure, but we as humans love to be in our comfort zone, right? What happens with my comfort zone? And I think it was Vygotsky who even talked about this, that there's a comfort zone and there's a learning zone outside the comfort zone. Sorry. So when we're in our comfort zone, I know that, tomorrow I'm going to do this. Day after, this is what's going to happen. I have a car, I have a driver, I have this. I'm not going to put too much effort into a lot of these things now, day-to-day function. Once I know, it calms me down and it gives me control. Humans, another thing is, I love control. I know that, I can drive if I don't have the car or the driver. Sorry, if I don't have the driver. Yeah. Right? So, again, my comfort zone gives me control. The minute I step out of my comfort zone, I lose control.
If I don't have control, I get anxious. I keep questioning myself. I keep second guessing my thing, and I ऐसे don't like that state. very true. Right, so that is one thing. Learning zone makes us have to step out of our comfort zone, and that is something that if you are someone who's prone to anxiety and all, you will try not to avoid. अच्छा, हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रोडक्टिविटी क्राइसिस की एक बहुत बड़ी वजह कनेक्टिविटी क्राइसिस है. Like people are so much connected to other devices and so many other things, but they're not connecting to themselves. Yeah. And they do understand that कि अगर हम प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, हम अपने काम के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, हमें अपने आप के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. हम अपनी थॉट प्रोसेस को बेहतर करने की ज़रूरत है. What would you advise that किस तरह सोशल मीडिया की वर्ल्ड में जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ना चाहते हुए भी हमें ऐसी चीज़ों का हिस्सा बनना पड़ता है जो हम नहीं बनना चाहते, अपने आप के साथ किस तरह कनेक्शन लेवल को बढ़ाएं? Oh, that's very interesting. And I have to. So there's this one. We talk about yoga. You talk about taking a trip. You talk about those are very typical things. Yes, they do help. In fact, again, psychology. When you look at it, psychology has actually studied connection of psychology with Islam, connection of psychology with Buddhism, with Hinduism. हर religion के साथ हमने connections देखे हैं. And one thing that if I talk about, let's say Islam only, prayer gives you that 5-minute prayer है आपकी, 10-minute prayer है, however long you take to pray, आप शुक्राना पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, all those things. But that prayer is those 5 minutes for you for 5 times a day to disconnect from things. Meditation, that psychology and that all other fields say is very important. Mindfulness, which is very important. Prayer gives you that. Very true. Right? So what are we doing? We are running away from things now. हम अब 5-minute prayer भी नहीं ले रहे. जो ले रहे हैं वो सिर्फ जुम्मे की नमाज के लिए ले रहे हैं और वो Very किसी true. और वजह से ले रहे हैं, to be honest. Right? So that's what's going on now, that we're not giving that 5 minutes to ourselves also. Because that 5 minute I have break, let me just look at what's on my phone. Very Why? true. The other thing is when I'm disconnecting from myself, I need to learn what is making me disconnect. So is it that, for instance, I'm someone who believes that my body talks to me, right? So I will always say that, okay, if I'm feeling this way, there's a reason why maybe my body is telling me something. If I'm falling ill, my body is telling me that I need to take a break, right? And that a lot of people do believe in also. But the question is, are you sitting back and listening to what your body is saying to you? Are you, willing to even acknowledge that the body is saying something to you? We are not. We are always, again, back to that, what we talked about on the get-go, running in the rat race. I want to reach somewhere. I'm disconnected from myself, from my family. Just like we talked about productivity crisis, Yeah. I feel that burnout is just increasing in the corporate Of world. course, yes. Corporate world में जो burnout का बहुत ratio वो ज़्यादा, बढ़ता yeah, चला जा yeah, रहा है, and there are yeah. so many reasons to it. Yeah. What do you think के reasons क्या हैं, and इसे fix कैसे किया जा सकता है? So we need to realize again what's causing me burnout. I always feel like we don't go to the root cause. We just suddenly try to understand that, okay, I'm burnt out. I need to do something about it, right? Yes, you do need to do something about it, but what caused that burnout? For instance, generally, a recent graduate, 22-year-old male or female, when they go into the corporate world, get a new job, all excited. You're going to be someone in that first month only. Probably be someone, if I'm getting an email at 10 o'clock, I should respond to it. Draw your boundaries. 10 o'clock, work hours are, if your work hours are off, it's off. You do not have to respond. That's what led you to that burnout level, right? So tackle that and learn your boundaries, which I feel, by the way, the youth is way more aware of it nowadays. I feel like maybe yours and my generation was someone who did that a lot. I look at students and they're like, ma'am, I'm here for this time. I'll do it in these hours that I've dedicated to this work of mine. Very true. And they're very well aware of those things. So we need to figure out that. What else is causing you burnout? Is it because you don't really like the job you're doing? I mean, you say you're into soft skills. And if you were forced to be someone who's into accounts, you'll obviously feel, right? You've burnt out. So आपने अपने parents की बात सुनी, when you let someone else also decide for you, that can happen, right? Sometimes you listen, and then you get pulled in the wrong career.
you have to, that's when midlife crisis आगे चल के भी आ सकता है and all those things, right? The other thing I would ask is, if your job is something you like, maybe your organization is not good for you. Yeah. Right? So is it the culture of the organization? The values don't align with yours. Sometimes organizational values are very set here, but you're someone who's not going to be, comfortable with always saying, "Ji sir." You might have your own opinions. Are you able to voice those? Are you not able to voice those? So again, those kind of things, first realize what's causing the burnout. Yeah. Then we can work on it, right? If I know that, okay, the organizational values are not aligning with mine and I can't change my organization, can I work on myself? Or can I then completely take a new, switch jobs to a different place? We live in a society जहाँ पे Hmm. अगर हम corporate world की बात करें, even in personal life से हमारे comparison बहुत ज़्यादा है. Yeah. इवन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, अगर आप सुबह 9 बजे उठ के लिंक्डइन खोलें तो आपको रोज एक नई पोस्ट दिखाई दे रही होती है कि फला शख्स यहाँ पर है, फला शख्स की अचीवमेंट है, Yeah. एंड दैट मेक्स अस कंपेयर, Yeah. दैट मेक्स अस रियलाइज कि यार मैं ही क्यों नहीं कर पा रहा और मैं Yeah. शायद बहुत पीछे रह गया. Yeah. आई थिंक कंपैरिजन इज किलिंग द प्रोडक्टिविटी, कंपैरिजन इज किलिंग अस, हमारी थॉट प्रोसेस को डैमेज कर रहा है. इस कंपैरिजन को कैसे स्टॉप किया जाए? बिकॉज मैं समझता हूँ जब तक आप सेल्फ पैराडाइम में नहीं शिफ्ट होंगे तब तक Yeah. आप ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव नहीं हो सकते. So I can look at it from a slightly different angle also. If I look at someone who was my peer, is my peer, or maybe my superior who's taught me, and they've started something new on LinkedIn and they shared it, I might get inspired. So one thing is, are you taking it in the positive? So again, I spoke about positive psychology earlier before. Martin Seligman and Peterson were two people who worked on positive psychology. They developed, how positive psychology was a field. It emerged only because, we thought 80 years, 100 years, psychology focused just on negativity, depression, etc. Yeah. What's positive about people, right? They started asking that. And in that field, we understood that, we're ignoring so many positive emotions. Very true. Why do I have to feel threatened by the other person that, they're doing better than me, or that I have to compare myself and I'm less than them? Why can't I feel like, okay, that person has done something and I can take inspiration from it? I can go ahead and maybe contact them and ask them how did they reach this point and learn for myself. So first thing is, again, that idea that how am I looking at that post, right? If I'm someone who is insecure, maybe if I'm someone who's not happy with what's going on in my career, in my life, I might make it more about comparison. If I'm someone who's looking at it with a more open mind, I might reach out to them and say, you know what, I want to work with you. Yeah. Take me in your, if you have an job opening, please involve me. वेरी ट्रू. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव कि Yeah. आप किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं. बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वक्त सब कुछ ठीक कर देगा ना, टाइम हील ऑल द वाउंड्स, एंड बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा नहीं है. बाज़ दफ़ा हमें चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना पड़ता है, बट स्टिल बहुत से लोगों का मानना है कि वक्त सब कुछ बेहतर कर देगा. Yeah. आपको क्या लगता है, क्या वक्त बेहतर कर देता है या चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे? Okay. So again, I have a twofold answer for this. I don't think I ever have a straight answer for anything, but time heals all wounds is very true in some ways, सही in है. certain aspects. फॉर एग्जाम्पल. It gives you perspective, right? So the more we experience life, whether that means that you're meeting new people, whether that means, you're traveling or just living your life, and it does give you learn through, experience, you go through different events, traumas, good things, bad things, ups, downs, जो भी. तो वो ज़रूर होगा कि आपको एक पर्सपेक्टिव, एक मैच्योरिटी आती है. जब वो होगा तो आपका पर्सपेक्टिव आप किसी और के नज़रिए से भी देख सकेंगे. You learn empathy with time also. The other thing is that despite everything, अगर कोई बहुत ट्रॉमेटिक चीज़ है और अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत पेनफुल इवेंट हुआ है, तो वो शायद कभी 100% नहीं फील होता, राइट? फॉर इंस्टेंस, बहुत सिंपल चीज़ है, लॉस ऑफ अ लव्ड वन. पेट भी होता है आपके, दिल में एक वो होता है कि ओके, हाँ, आसान नहीं होता, लेकिन इट्स नॉट कि वो एम्प्टी वॉइड कभी भर सकता है. और कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जो एक जैसे कील होता है ना, जो आपके हार्ट में चुभ गया है, उसके अराउंड वुंड कवर तो हो जाता है. लाइक गन शॉट का भी डॉक्टर्स कहते हैं ना कि
हम बुलेट तो नहीं हटा सकते, Yeah. लेकिन वुंड वो हील हो जाता है, लेकिन वो कभी कभी पेन करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि यू डोंट नो हाउ टू लिव योर लाइफ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुश नहीं होंगे, आप लेकिन हाँ, वो कभी कभी चुभेगी वो कील, या वो गन शॉट कभी कभी चुभेगा, तो आपको उसको डील करना आना चाहिए कि अच्छा, आई नो कि मेरे साथ इन दिनों में ये होता है, या जब किसी की डेथ हुई थी तो उनकी बरसी के टाइम पे मैं क्या कर सकती हूँ अपने लिए कि मैं उस वुंड को इस तरह से डील करूँ कि मैं अपने आसपास वालों को भी ना असर होने दूँ। Very true. A lot of individual have this problem. मैंने भी काफ़ी नोट करी और मेरे अंदर भी शायद कहीं ना कहीं होगी कि we know that this person is cheating us, या this person is breaking us, या ये पैटर्न मेरा गलत है, या ये मेरी आदत गलत है, but we keep repeating those patterns again and again. हम उन्हीं गलतियों को बार बार कर रहे होते हैं, हम वो कितना एक ही दीवार पे बार बार सर मार रहे होते हैं. How to break that pattern? Because अगर आप अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, किसी लेवल पर मीट करना चाहते हैं, तो आपको गलतियां करना एक टाइम पर मिनिमाइज करनी पड़ती है, बिकॉज उन गलतियों की कॉस्ट बहुत बड़ी हो जाती है. इस पैटर्न को ब्रेक कैसे करें? अच्छा, एक चीज़ है, आप वही गलती रिपीट कर रहे हैं या आप नई गलतियां रिपीट कर रहे हैं. वेरी नाइस. एक रेजिलियंस, वही मैं मार्टिन, बिकॉज मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी मैंने काफ़ी पढ़ा था, तो मार्टिन सेलिगमैन की एक कॉन्सेप्ट था रेजिलियंस, राइट, और हम लोग जनरली भी रेजिलियंस की बात करते हैं. अब रेजिलियंस हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऑफन हम लोग ये कहते हैं बाउंसिंग बैक, राइट, आपने सेटबैक से आप बाउंस बैक किए. मैंने आई थिंक किसी और का, आई थिंक सेलिगमैन का ही सुन रही थी, या वन ऑफ सेलिगमैन स्टूडेंट्स का सुन रही थी, एक वीडियो देख रही थी. उन्होंने, किसी ने कहा था, रेजिलियंस इज नॉट बाउंसिंग बैक, इट्स बाउंसिंग फॉरवर्ड. आपका सेटबैक आया, आपने उस सेटबैक से सीखा, तो आप वो रिपीट गलती नहीं करेंगे, आप नई गलती करेंगे. माना कि गलती करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप नई गलती करेंगे, बिकॉज आपने अपनी गलती से कुछ तो सीखा होगा, राइट. तो एक तो ये है कि हम रेजिलियंट हैं या नहीं है, राइट. दूसरा ये है कि हमारा एक बहुत फिक्स्ड माइंडसेट होता है. अगेन मैं कहूँगी, बारबरा फ्रेडरिक्सन है, जो सेलिगमैन की ही आई थिंक स्टूडेंट थी या को ऑथर थी. शी टॉक्ड अबाउट ग्रोथ माइंडसेट. एंड देन अगर हम पास में देखें तो साइकोलॉजी हैज़ ऑफन स्पोकन अबाउट फिक्स्ड माइंडसेट. फिक्स्ड माइंडसेट ये है कि अगर मैंने कोई चीज़ उठाई, रिंग भी ली अगर कोई छोटी सी, तो वो सिर्फ मैं अपने उंगली में ही पहनूंगी, राइट. ग्रोथ माइंडसेट ये कहेगा, अच्छा, इट्स अ नाइस सर्कल, मैं इसका और क्या कर सकती हूँ. अगर मेरे पास कंपास नहीं है और मुझे छोटा सा सर्कल बनाना है ड्राइंग, तो मैं अपनी रिंग से ही कॉपी क्यों ना कर लूँ. वेरी ट्रू, राइट. सो वही बात है कि आपका फिक्स्ड माइंडसेट अगर हो जाता है, उस पैटर्न को ब्रेक करना फिर मुश्किल होता है. वेरी ट्रू, राइट, क्योंकि हम नॉवल आइडियाज़ या थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स नहीं कर पाते हैं. अगर हमें करना है तो हमें अगेन पर्सपेक्टिव चाहिए. और पर्सपेक्टिव कैसे आएगा? टेक अ स्टेप बैक. ऑफन मेरा एक बहुत ऑफन एक चीज़ की मैं कहती हूँ कि आप एक स्टेप बैक लें. अगर आपसे 5 बार एक ही गलती हुई है, स्टेप बैक, आस्क योरसेल्फ, यार फर्स्ट टाइम मैंने ये किया, सेकंड टाइम मैंने दूसरा स्टेप किया लेकिन वही गलती हुई, थर्ड टाइम मैंने किया, फोर्थ टाइम किया, क्या हो रहा है वहाँ पे? या तो मैं कुछ कर रहा हूँ या वो एनवायरनमेंट की वजह से है. वेरी ट्रू. 2 रीजंस हो सकते हैं, या तो मैं हूँ रीजन या एनवायरनमेंट हो सकता है. A lot of individuals having a bad day in their life. हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा दिन आ रहा होता है जिससे वो ना अपसेट हो जाता है. और कहते हैं जब आप मेंटली अपसेट होते हैं, आपके इमोशंस डाउन होते हैं, तो आप इनफैक्ट गलत फैसले भी ले रहे होते हैं. बिल्कुल. हाउ टू कन्वर्ट अ बैड डे इनटू अ गुड डे? मतलब किस तरह से इस फीलिंग को शिफ्ट करें और इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आए? अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं आपसे, क्यों जरूरी है बैड डे को गुड डे कन्वर्ट करना? जैसे मैंने कहा कि भाई आपके अगर इमोशंस नेगेटिव हैं, तो कहीं आप गलत फैसले ना ले लें. वो बुरा वक्त जो आया, डार्कनेस नहीं होगी तो लाइट कहाँ से आती है? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. बट बात जब हम वो बुरा दिन जा नहीं रहा होता ना, उसकी ड्यूरेशन लंबी हो जाती है. क्योंकि हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं, तो हमें वो ज्यादा लंबा लग रहा होता है. होता तो वो 24 आवर्स से ज्यादा तो लंबा हो नहीं सकता है, राइट. और लाइट की वैल्यू, ये बात भी होती है कि लाइट की वैल्यू डार्कनेस के बगैर नहीं समझ आती हमें. लेकिन ऑफन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं नहीं मुझे खुश होना है या मेरे लिए अच्छा ये दिन होना है. क्यों अच्छा होना है? कभी कभी लेट अ बैड डे बी अ बैड डे. ठीक है, उस दिन आप कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीजंस ना लें. उस दिन आप कोशिश करें कि आप बहुत लोगों से ना मिलें. शायद अगर आपको पता है कि मैं गुस्सा कर दूंगा या कुछ बुरा कह दूंगा या मैं सैड हूँ बहुत, हाँ, तो आप ना मिलें उस दिन. उस दिन आप अपने कमरे में रहें, किताब पढ़ें, मूवी देख लें अपनी कोई.
लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरैक्ट करें या बहुत, हाँ काम पे जाना है अगर ऑब्वियसली, मतलब यूर वर्किंग पर्सन, Yeah. तो ठीक है काम करें, अपना डेडलाइंस को ही मीट करनी है कोशिश करें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन को गुड डे बनाएं। हाँ, अगर कोई ऐसा दिन है जिसमें आपका कॉन्फ्रेंस है या आपको किसी के सामने बात करनी है या बॉस के सामने प्रेजेंट करना है, कुछ करना है, और वो बैड डे चल रहा है, तो फिर आपको उस पर काम करना होगा। राइट, सो आइडेंटिफाई करें कि भाई इस वक्त ज़रूरी भी है कि मैं उस बैड डे को गुड डे करूं या नहीं करूं। अगर करना है तो एक इमोशनल लेबर का एक कॉन्सेप्ट होता है जो आई थिंक क्या नाम था उनका, मैं अगेन नाम भूल रही हूँ, ए It's okay. नेम इज एस्केपिंग मी कम्प्लीटली, हालांकि मेरा थीसिस था उसके ऊपर, बट उनका जो कॉन्सेप्ट था वो ये कहती हैं कि जैसे स्टूवर्ड्स होते हैं, राइट, एयरप्लेन हो, कैबिन क्रू, अब उनका बैड डे चल रहा है, राइट, वो घर से झगड़ा करके आए हैं या रोड पे एक्सीडेंट हो गया, और फिर आप पैसेंजर हैं, शी हैज़ टू सर्व यू, ही हैज़ टू, दोनों मेल ऐसे फीमेल ही सर्व करना है, वेलकमिंग होना है, स्माइल होना है इस फेस पे, इट टेक्स अ टोल ऑन यू, विच बाय द वे इमोशनल लेबर इज अनदर रीजन फॉर बर्न आउट, जो हमने पहले Very बात true. की, राइट। अब उसको हम कैसे मैनेज करें? अब मेरा तो मूड ख़राब है, लेकिन मुझे वेलकमिंग भी होना है, मुझे स्माइल भी करना है, Very true. राइट। तो इसके तरीके होते हैं फिर, या तो आप कॉन्शियसली, या तो आप एक्टिंग करें, विच कैन लीड टू बर्न आउट, बट काफ़ी ऑफन करना पड़ता है। करना पड़ता है। कभी कभी आप ये करें कि आप अपने आप को सोचें, अच्छा ओके, एक टर्म होता है डीप एक्टिंग, इमोशनल लेबर का ही है, मतलब कि मैं उस टाइम के बारे में सोचूं जब मैं एक्चुअली खुश थी, या मैं उन इवेंट्स के बारे में सोचूं, या मैं अपना टाइम विद माय डॉटर या चाइल्ड या हस्बैंड, कोई ऐसा इवेंट दिमाग में लाऊं दैट कैन हेल्प calm me down, calm those emotions down, bring into a more positive light, and then start with that Very work. nice. So एक वो होता है ना डीप एक्टिंग और सरफेस एक्टिंग, दो ऑप्शंस, दो सॉर्ट ऑफ अपोजिंग एक्शंस होते हैं। एक्टिंग तो है दोनों ऐसे में, ही और जेन्युइन एक्टिंग थर्ड ऑप्शन था कि भाई आई एम एक्चुअली फीलिंग इट, मुझे सिंपैथी, जैसे डॉक्टर्स का होता है आई एम सिंपैथेटिक फॉर माय पेशेंट एंड आई एम एक्चुअली शोइंग दैट सिंपैथी, तो वो परफेक्ट होता है, वो आपका लाइन हो रहा है तो ग्रेट फॉर यू, नहीं होता तो आपको ये करने पड़ते हैं कि हाँ भाई मैं डीप एक्टिंग कर रही हूँ तो मैं कैसे करूँ, कैसे थिंक करूं? बैक, जैसे वो एक्टर्स उसको शायद मेथड एक्टिंग कहते हैं, ऐसे ही Right? ऐसे ही वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे ओवर थिंकिंग एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल हैव दिस प्रॉब्लम जहाँ पे वो एक प्रॉब्लम से और प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, एंड दे डू गेट स्टक इन अ लूप ऑफ ओवर थिंकिंग। इस ओवर थिंकिंग को किस तरह से फिक्स किया जाए, बिकॉज यू नो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारी अचीवमेंट्स को श्रिंक कर रहा होता है। ओके, अगेन एक चीज़ तो मैं ये बोलूँगी कि साइकोलॉजी ने हमें ये समझाया है कि अगर आप एवोल्यूशन को भी देखें बाय द वे, तो ह्यूमन बीइंग्स का ब्रेन, मतलब जो एक्चुअल बायोलॉजी है, ब्रेन एंड माइंड दोनों, राइट, माइंड इज थॉट्स एंड बायोलॉजी, दोनों नेगेटिव को देखते हैं, राइट, क्योंकि मतलब आप केवमैन टाइम में चले जाएं, अगर आपने एक रोर सुना है तो भाई आपको उसको नेगेटिव ही परसीव करना है कि ये मेरी लाइफ थ्रेटनिंग है, वरना आप जिंदा नहीं रहेंगे, Very राइट। true. तो हमें थ्रेट्स परसीव करना है, और हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली ट्यून्ड है थ्रेट्स को परसीव करना, राइट। एक तो वहाँ से हमारा फिर एवोल्यूशन चलता आ रहा है कि भाई अब हम नोमैड्स नहीं हैं, हम केवमैन नहीं हैं, लेकिन हम हर चीज़ को फिर भी नेगेटिवली देखते हैं, राइट। एक दूसरा हमारा, इसलिए साइकोलॉजी एक वर्ड यूज़ करता है, कैटास्ट्रफी से निकलता है, कैटास्ट्रफाइजिंग, Yeah. और वो एक थिंकिंग ट्रैप है। हम क्या करते हैं, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के ना, एक छोटा सा आपकी रिकॉर्डिंग ख़राब हो गई तो ओ माय गॉड पूरा इसका मसला हो जाएगा, ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा, इसके साथ ये होगा, इसका ये, अब सोच एक से वही आप जैसे ओवर थिंकिंग का एक लूप शुरू हो जाता है, राइट। और वो लूप बहुत मुश्किल है, उसको ब्रेक करना होता है मुश्किल, लेकिन उसमें अगेन कुछ चीज़ें काम आती हैं, और उसमें एक चीज़ जो बहुत काम आती है, जो हम कहते हैं अपने आप को वापस प्रेजेंट में लेकर आएं। अगर आप कहीं चले गए हैं कि ये मसला हो जाएगा और इसका ये प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसको हम वापस अपने आप को इस मोमेंट में कैसे लेकर आएं, क्योंकि सबसे पहले वो ये है कि मैं इस मोमेंट में आऊँगी, मैं 2 मिनट सांस लूँगी, और फिर मुझे समझ आएगा कि अच्छा अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई अगर पॉडकास्ट की तो इसका सोल्यूशन क्या है। लेकिन अगर मैं उस लूप में ही रहूँगी तो मैं सोल्यूशन पर तो आ ही नहीं कभी सकूँगी, नहीं आ सकती। राइट।
तो एक तो बहुत सिंपल तरीका होता है, अपने 5 सेंसेस को एंगेज करें. नेम 5 थिंग्स यू सी, राइट? 4 थिंग्स यू कैन टच, 3 थिंग्स यू कैन, नहीं स्मेल 2 होता है, कौन सा मैं 3 भूल गई हूँ. टेस्ट 1 होता है, कौन सा मैं सेंस भूल गई. It's okay, it's okay. 5 सेंसेस में से भी एक सेंस भूल गई. बट हाँ, हमारे 5 सेंसेस में आप 5 को एंगेज करें, राइट? सो टच, सी, स्मेल, टेस्ट एंड हेयर. तो इन सब 5 सेंसेस में जब आप सोचने लगते हैं ना, अगर मैं आपसे अभी कहूँ कैन यू टेल मी 5 थिंग्स यू सी, Hmm. ऑटोमेटिकली आपने वो जो थॉट प्रोसेस था टूट गया आपका. अब आप यहाँ देखेंगे, हाँ मुझे प्लांट नज़र आ रहा है, माइक नज़र आ रहा है, लाइट नज़र आ रही है, मैं नज़र आ रही हूँ, 5 चीज़ें हो गई. फ़ौरन से आपका वो थॉट प्रोसेस ब्रेक हुआ, ऐसा ही. राइट? और आप वहाँ पे अभी प्रेजेंट में आ गए. अगर आपके पास ये नहीं है, अच्छा नहीं हो रहा मुझसे ये, हमारे हर जगह हमारे पास ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं, कुछ ना कुछ रखा होता है. 5 सेंसेस उस ऑब्जेक्ट में लेकर आ जाएं, Very true. राइट? सो अगर मैं माइक को नहीं टच कर, मैं रिंग्स बहुत पहनती हूँ मैं. अच्छा, अगेन 5 सेंसेस क्या है? हाँ, आई कैन सी कि इसमें पर्पल कलर है या गोल्डन कलर है, या आई कैन सी कि इसमें इट्स हार्ड, और एसी की वजह से बिकॉज वो मेटल की है तो ठंड कोल्ड हो रहा है, राइट? सो उस थॉट प्रोसेस को मैंने इमीडिएटली कहीं से स्टॉप लेकर आई. मैं जैसे ही मैंने उस ओवर थिंकिंग के प्रोसेस को स्टॉप ला सकी, आई कैन नाउ टेक अ ब्रीदर, Hmm. राइट? एक सांस ली मैंने, 2 सांसें ली. अब मैं पूछूंगी, अच्छा ये मेरा थॉट प्रोसेस शुरू कहाँ से हुआ था? क्या हुआ था कि मैं इस लूप में चली गई? Hmm. मेरी रिकॉर्डिंग लाइक आई सेड के ख़राब हो गई, या आज मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया था इसलिए मैं थॉट प्रोसेस में चली गई, या मेरी डेडलाइन नहीं मीट हुई, राइट? या मेरे बॉस ने आज मुझे कॉल इन कर लिया है और मैं ऐसे ही. सोचने लगी कि यार मुझे फायर कर देंगे, या मेरी डेडलाइन नहीं हुई थी, मुझे आज डांट पड़ेगी, ब्ला ब्ला. वही हम लोग कैटास्ट्रोफी पे चले गए. तो क्या हुआ? अच्छा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि बॉस ने आज बुलाया है तो डांटने के लिए ही बुलाया होगा, हो सकता है कोई असाइनमेंट की बात करनी हो. अच्छा, डांट भी खानी है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं आज ही फायर हो जाऊंगी. मतलब आप खुद पॉजिटिव थिंकिंग को प्रैक्टिस करें, आप मतलब हम्म. उस चीज़ को डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करें. मूविंग टुवर्ड्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी सोसाइटी में नेगेटिव इमोशंस के बारे में बहुत कम बात की जाती है, जैसे लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, जस्ट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. बात सब हमें समझ नहीं आ रहा होता कि ये मुझे एंजाइटी हो रही है या ये डिप्रेशन है. मतलब सिम्टम्स, लाइक हाउ टू फिगर इट आउट दैट, एंड मतलब what would be the right source? Should I consult if I'm feeling, down and all that stuff? किस तरह से symptoms को figure out किया जाता है? अच्छा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि डिप्रेशन का वर्ड जैसे कम यूज़ होता है, अंडरस्टैंडिंग कम है इसकी, राइट? जनरली हम लोग कॉन्वर्जेशन में कह रहे होते हैं, यार आज मैं बड़ा डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, राइट? और उसको हम फिर बढ़ा चढ़ा के वही हो रहा होता है, कैटास्ट्रोफी और मी और सारे थिंकिंग ट्रैप्स में जा रहे होते हैं. इसमें ये मसला ये है कि अच्छा, पहले तो ये देखें कि आज मैं डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, तो मैं डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ नहीं. डिप्रेस्ड होना इज़ अ मेंटल हेल्थ डायग्नोस्ड इशू. डिप्रेस्ड फील करना कैन बी फीलिंग सैड एंड ब्लू एंड नेगेटिव थोड़े इमोशंस आना, ये सब. तो पहले तो मैं इसमें डिफ्रेंशिएट कर पा रही हूँ या नहीं, राइट? अच्छा, अब मैं कर पाती हूँ तो फिर मुझे अपने आप से ये पूछना है कि अच्छा ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, Yeah. कुछ हो रहा है काफ़ी टाइम से अगर चल रहा है, और आपको आपकी फैमिली भी कह रही है, या आपने खुद नोटिस किया कि आपके बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आप ज़्यादा सो रहे हैं, कम सो रहे हैं, आप ज़्यादा खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, आप मतलब बिहेवियर में जो भी, आप ज़्यादा इरिटेबल हो रहे हैं, लोगों पे ज़्यादा चीख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. अच्छा, बिहेवियर पैटर्न चेंज हुआ है और थोड़े टाइम से चेंज हो रहा है. आई कांट आंसर व्हाई इट्स हैपनिंग. एक तो होता है कि चलो बेरीवमेंट पीरियड आता है, वही लॉस से रिलेटेड अगर है Yeah. तो आपको पता है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ये, राइट? एक होता है कि मुझे पता ही नहीं है क्यों है. अगर पता ही नहीं है, आई एम एन एडवोकेट, गो फॉर थेरेपी. Yeah. थेरेपी में कोई गलत बात नहीं है. वो स्टिग्मा जो अटैच्ड है, प्लीज़ उसके बारे में नहीं सोचें. अगर हम हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह आप मेंटल हेल्थ के लिए थेरेपिस्ट के पास जाएं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं. इसमें बेस्ट क्या होगा, साइकोलॉजिस्ट ना आपको बदलेगा ना आपको एडवाइस देता है. साइकोलॉजिस्ट कभी एडवाइस नहीं देता. आपके पास जो आपके टूल्स हैं, जो आपका रेजिलियंस है, जो आपका माइंड है, वो आप कैसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, काउंसलिंग और साइकोलॉजी और थेरेपी आपको ये बताती है, Very true. राइट? इट्स नॉट देयर टू चेंज यू इन एनी वे.
केली मैकडॉनल्ड की मैं एक बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च पढ़ रहा था, टेड टॉक भी है कि मेक स्ट्रेस योर फ्रेंड, एंड Yeah. केली मैकडॉनल्ड कहती है कि स्ट्रेस बुरा नहीं है, नहीं है, ये बिल्कुल। बिलीफ कि स्ट्रेस बुरा है ये बहुत बुरा है। मतलब वो लोग हार्ट अटैक से नहीं मर रहे, लोग इस बात से मर रहे हैं कि जो स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक होता है उस बात से मर रहे हैं। सो व्हाई इज़ दैट? सो अपने स्ट्रेस के बारे में अवेयरनेस क्यों उस तरह से नहीं दी, और हम किस तरह से लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि स्ट्रेस बुरा नहीं है? मतलब व्हाट एग्जैक्टली आर योर थॉट्स? अच्छा, अगेन हम साइकोलॉजी में तो पढ़ते हैं कि स्ट्रेस के 2 टाइप्स हैं, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। यू Yeah. नो, लिटरली यू स्ट्रेस इज द गुड स्ट्रेस, और आप थ्रिल सीकिंग बिहेवियर जो होता है वो गुड स्ट्रेस होता है, वो आपको मोटिवेट करता है। अगर आप थोड़े से नर्वस नहीं होंगे स्टेज पे जाने से पहले तो आप परफॉर्म कैसे करेंगे? अच्छा, ट्रू। तो कहीं कहीं तो स्ट्रेस आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप डेडलाइन के बारे में फिक्रमंद नहीं होंगे तो आप डेडलाइन मीट नहीं करेंगे, राइट? इतना स्ट्रेस तो ज़रूरी है। गुड स्ट्रेस इज ऑलवेज गुड फॉर यू बिकॉज चेंज, like we talked about, the mind loves novelty, change is always good for you. I mean, I think Aristotle थे या Plato थे जिन्हें कहा था all I know is that I know nothing at all. Yeah. Acknowledging that I know nothing is very Socrates. important. Socrates, thank you. Right? कि acknowledge करो और उसी तरह से आप जाओगे कि अच्छा I'm going into learning something new. Like I'm here and I said this, I'm learning something new on podcast, right? कि किस तरह different questions को मुझे answer करने हैं, क्या क्या tackle करना है, let's say. तो वो ज़रूरी है। डिस्ट्रेस को आप आइडेंटिफाई करें कि अच्छा अब ये नेगेटिव्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब ये या तो बर्नआउट की तरफ जा रहा है, इमोशंस को मेरे इम्पैक्ट कर रहा है, मेरी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, मेरी साइकोलॉजिकल हेल्थ को। वेरी ट्रू। तो अगेन आप वो देखें क्या इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म हो रहा है, तो फिर आप ऑफ कोर्स उसके लिए फिर से मैं कहूँगी थेरेपी तो मैं कहती हूँ हर इंसान को जाना चाहिए। Thank you so much, Falak, for sharing your thoughts. I think there's so much to ask, there's so much to share. मैं अभी भी समझता हूँ बहुत सारी ऐसी बातें जो की जा सकती हैं, जिन पर बात की जा सकती है। तो would love to invite you again in the podcast, and इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात भी होती है। Thank you so much. बहुत शुक्रिया।